بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ شہباز شریف صاحب آج کراچی پہنچے ہیں۔ اتحادی بھی ان کے ہمراہ تھے، نہ صرف یہ کہ مزار قائد پہ حاضری دی، اس کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس تشریف لے گئے۔ جو سندھ سے ریلیٹڈ ترقیاتی منصوبے تھے، بالخصوص کراچی کے ترقیاتی منصوبے تھے، اس کے معاملے میں شہباز شریف صاحب کو تفصیلی بریف کیا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے، جو اس سے قبل ایئرپورٹ پر موجود تھے فیصل ایئر بیس پہ وزیر اعظم کے استقبال کے لیے۔ تو بڑے طویل عرصے کے بعد وفاق اور سندھ کے درمیان جو ایک بڑی گہری خلیج تھی اور دراڑ تھی، وہ آج ہمیں مٹتی ہوئی نظر آئی ہے، بڑی گرم جوشی نظر آئی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب نے وزیر اعلیٰ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جو سندھ کے ترقیاتی منصوبے ہیں اس کے حوالے سے وہ ترجیحی بنیادوں پر عمل درآمد کرائیں گے۔ ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب چلے گئے ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد، ایم کیو ایم کی قیادت سے ملاقات کی۔ بڑا پرتپاک استقبال ہوا شہباز شریف صاحب کا اتحادیوں کی جانب سے، اور یہاں بھی شہباز شریف صاحب نے جو ایم کیو ایم کی قیادت ہے، جو ان کی رابطہ کمیٹی ہے، دیگر اراکین اسمبلی ہیں، انہیں یقین دلایا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایم کیو ایم کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے اوپر عمل درآمد کرے گی، کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے، اور ماضی میں جو ایم کیو ایم کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا ازالہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ تو بڑی پیش رفت ہے۔ ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں عمران خان صاحب، وہ آج سے خود سڑکوں پر ہوں گے۔ پہلی جو جلسہ ہے وہ اب سے کچھ دیر کے بعد پشاور میں ہوگا، جس کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں انہیں چین سے حکومت نہیں کرنے دوں گا، فوری انتخابات چاہتا ہوں۔ آج پشاور میں ہیں، 16 اپریل کو وہ کراچی میں ہوں گے، اور پھر اس کے بعد وہ لاہور میں ہوں گے۔ عید کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی جانب بھی مارچ کرنے کے بارے میں صلاح مشورے ہو رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ایک روز میں پورا پاکستان بند کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ جو پنجاب کے حوالے سے ہے، جہاں آج لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ 16 اپریل کو اب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کرائی جائے گی۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ کسی کو ووٹ ڈالنے سے نہ روکا جائے۔ ساتھ ساتھ ڈپٹی اسپیکر کو جو دیے گئے اختیارات اسپیکر صاحب نے سلب کیے تھے، وہ حکم نامہ بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اب ڈپٹی اسپیکر صاحب 16 اپریل کو اس اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے حمزہ شہباز اور چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ وہاں کا جو سیاسی بحران ہے وہ بھی ایک طرف ہو جائے گا۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے آج کے پروگرام میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما صوبائی صدر نثار کھوڑو صاحب، جمعیت علماء اسلام کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر ڈاکٹر عفنان صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محترم جناب آفتاب جہانگیر صاحب۔ کھوڑو صاحب، کوئی لگ بھگ 4 سال اس حکومت کے، یعنی 3 سال 7 ماہ کے بعد جو ایک تناؤ کی سی کیفیت تھی، وہ آج کچھ کم نظر آئی ہے۔ شہباز شریف صاحب اور مراد علی شاہ صاحب کے لگ رہا ہے کہ ابتدا میں جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ بہتر ہے۔ کتنا ہوپ فل ہے آپ کہ جو پچھلی محرومیاں ہیں یا جو آپ کے ایشوز ہیں ان کا اب مداوع ہو سکے گا اس حکومت میں، جس میں آپ مرکز میں بھی موجود ہوں گے، اور آپ کی کارڈیل ریلیشن شپ بھی اچھی ہوگی، کیونکہ آپ نے ہی مل کے عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ پلٹا ہے؟ دیکھیں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان نے مسلسل لگ بھگ 4.25 سال ایک ان ڈیموکریٹک رولر کو فیس کیا۔ اس نے اپنی ساری پول کھول کے رکھ دیے کہ وہ پرو ڈیموکریسی ہے ہی نہیں۔ اس کا اسپیکر پر روب ڈال کر رولنگ دلوانا سب سے بڑا غلط کام تھا۔ اس کے بعد اسمبلی کا ویلیو نہ کرتے ہوئے ڈیزالو کر دینا ایک اور کام تھا۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ خود نہ آ کر اور خود نہ فیس کر کے اس نے ایک اور ان ڈیموکریٹک کام کیا۔ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے جو استعفے دیے وہ سب سے بڑا ان ڈیموکریٹک کام تھا۔ یہ اگر گنتے جائیں گے تو میں پتہ نہیں کتنے کچھ گنا سکتا ہوں، جس میں اپنی ٹوٹل
अनडेमोक्रेटिक माइंडसेट का उसने पूरी तरह से खोल के रख दिया अपने आप को कि मैं हूंगा तो सब ठीक है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी ठीक नहीं है। मुशर्रफ का मैं पैरोकार हूं तो हूं, लेकिन डेमोक्रेसी का पैरोकार नहीं होऊंगा। अब एक कोalition गवर्नमेंट आई है जिसमें सारी पार्टियां इकट्ठी हैं मासवाए एक तहरीक इंसाफ के। ये जो पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, इन्होंने पहले भी पाकिस्तान में हुकूमतें की हैं। पीपुल्स पार्टी ने भी कोalition में हुकूमत चलाई थी। नवाज लीग ने तो शायद हुकूमत उसको कोalition में नहीं चलानी पड़ी क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा मेजॉरिटी थी, लेकिन हमें कम से कम ये है तजुर्बा कि कोalition हुकूमतें कैसे चल सकते हैं, और हमने करके भी दिखाया कि हम 5 साल असेंबली को चलते रहने दिए, जिससे अवाम को एक एतमाद आया। 5 साल का असेंबली का चलना अवाम के एतमाद में इजाफा करता है। असेंबलियों से उम्मीदें बांधी जाती है कि 5 साल कम से कम रहेंगे, हमारे कुछ न कुछ ख्वाब तो पूरे हो सकेंगे। इसने वो ख्वाब भी चकनाचूर किए अपने घमंड में, अपने ज़ौम में, अपने गुरूर में। उसने डेमोक्रेसी को पढ़ा ही नहीं। वैसे भी मुझे नहीं लगता था कि वो कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन उसने जो अपने आप को एक्सपोज किया है चंद दिनों में, उसमें मैं तो कम से कम बहुत मायूस है। मैं तो कम से कम बहुत मायूस हूं। लेकिन अगर वो समझता है कि उसने सब कुछ कर लिया तो ठीक है, आगे ये रास्ता है, ये सियासत है, ये दिन है, ये साल है, ये गुजारने पड़ेंगे हम सबको, और अपने अवाम अपने आप को पहचानेंगे और इन नाकबत अंदेश हुक्मरान को भी पहचानेंगे जिसका नाम था इमरान खान। कामरान साहब, ये रही बात हमारी कोऑपरेशन। जी खोड़ो साहब। जी सर। जी सर। नहीं ठीक है, आप बोले बोले। मैं जी कोऑपरेशन वाली बात कर लें तो मैं फिर कामरान साहब से बलूचिस्तान वाली बात करता हूँ, जो सिंध मैं से समझता हूँ उनको तजुर्बा है, कोalition का तजुर्बा इनके पास है, और एक के साथ कोऑपरेशन करने का भी तजुर्बा इनके पास है। हम पहले पीडीएम में हिस्सेदार थे, अब चलो हम ना ही हैं पीडीएम में, लेकिन हमने उनके साथ खुल के ऑफर की। हमने खुद जाके कहा था शहबाज शरीफ साहब का कि उनको कहा था कि पीएमएलएन का हक है कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए नामजद कर दें किसी। हमने हुकूमत में आने के लिए नहीं, लेकिन अवाम की तकलीफ को महसूस करते हुए हमने ये जाके खुद, नहीं तो हम कोई ना कोई खेल कर सकते थे, किसी और तरीके से भी खेल कर सकते थे। हमने खुद जाके ऑफर किया था। इससे बड़ा दिल क्या हो सकता है कि हम उनके साथ बैठे हैं और वजारतें तक भी नहीं मांग रहे हैं। हुकूमत कह रही कि जी पीपुल्स पार्टी को वजारतों में आना चाहिए, लेकिन हमने अभी तक फैसला नहीं कर पाए। ठीक, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, लेकिन हमारी सपोर्ट रहेगी उनको। ठीक, कामरान साहब, कोऑपरेशन का कोई मसला ही नहीं है। ठीक है कामरान साहब, अब ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, कामरान मुर्तज़ा साहब, अभी कोलिशन गवर्नमेंट के अपने इश्यूज होते हैं, जाहिर सी बात है हर एक पार्टी का अपना एजेंडा है। कितना आसान होगा, क्योंकि अब आप हैं तो आपके भी फोकस होगा, जैसे बलूचिस्तान है कि जी बलूचिस्तान के हवाले से प्रायोरिटी हो, सिंध के हों, केपी के हों, तो ये कोई आसान मरहला नहीं होगा। एक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा और दूसरा फिर साथ में कोलिशन। मेरा ख्याल है कि अब मुश्किल अब शुरू हुई है। अब हमको अपना ये इस्टेब्लिश करना होगा कि हम जमहूरी लोग हैं, और इस तरह से नहीं है कि हम जो है वो साथ ना चल पाएँ। माजी में तजर्बे कभी कामयाब भी रहे हैं और कभी कामयाब नहीं भी रहे हैं, दोनों तरह से जो है ना वो मामला चले हैं। मगर असल इम्तहान जो है वो क़यादत का भी और कारकुनों का भी, वो अब शुरू हुआ है। और यकीनन ये इस इम्तहान से सिर्फ एक सूरत में हम सुरखरू हो सकते हैं कि हम कुर्बानी दें। जहाँ पे हम समझते हों कि कोई हमारा हक है भी, तो भी हम दूसरी पार्टी के लिए वो छोड़ दें और उनको मामलात लेके चलने दें। दूसरी बात यह है कि जब तक हम आवाम को रिलीफ नहीं देंगे और उनको इमीडिएट जो है ना वो 10-15% की कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, उस वक्त तक जो है ये फ़र्क लोगों को नज़र नहीं आएगा। लोग जो है वो इंतहाई जो है तकलीफ़ के आलम में ये 4 साल गुजार के गए हैं, और इस तकलीफ़ के बाद उनको इमीडिएटली जो है वो इतना रिलीफ ज़रूर चाहिए कि वो उनको पता चले कि कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ गया है आने के बाद। तो ये फ़र्क जो है ये भी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ये एक अलग से इम्तहान है। तो अगर ये 2 इम्तहान गुजर गए तो फिर मेरा ख्याल है कि ये मामला चल पड़ेगा। मगर इसके साथ एक तीसरा इम्तहान भी जो है ना वो इमरान खान साहब ने वो खड़ा कर दिया है।
रेजिग्नेशन जहां उनके मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली में वो उन्होंने रिजाइन कर दिया। इसी तरह वो तंग करेंगे, वो सूबाई असम्बलियों में भी और वक्तन फक्तन जो है वो तंग करते रहेंगे। ठीक है, इससे जो है इस कोलिशन गवर्नमेंट को नुकसान होगा, मगर मेरा ख्याल है इससे उससे भी बड़ा नुकसान जो है खुदा न खास्ता मुल्क को पहुंचने का इसमें अंदेशा होता है। तो शायद उनको ये इसके इतना उनका विजन नहीं है, या उनका वो डेमोक्रेसी पे उतना बिलीव नहीं है, या खुद पसंदी या नापरस्ती इस हद तक ज़्यादा बढ़ गई हुई है कि अगर मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं। तो बहरहाल ये इम्तहानात जो है ना, वो 2-3-4 जो इम्तहानात बड़े हैं, ये हमको जो है ना वो गुजारने पड़ेंगे। और अगर हम इसमें बेहतर तरीके से सुरखरू हुए, अगर इसको हमने गुजार लिया, तो इसका मतलब ये है कि हम इस टेस्ट में पूरे उतरे, और फिर ये जो 6 महीने करें या 1.5 साल करें, जितना भी करें इस वक्त का, वो हमारा ठीक होगा। और फिर अगली दफ़ा भी जो है ना वो इनके आने की, मुखालफों की आने की उम्मीद नहीं रहेगी। डॉक्टर अफनान साहब, अब तो जो ड्राइविंग सीट है उस पर आपकी पार्टी बैठी है, शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं। जिस चैलेंजेस की बात कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं, खोड़ो साहब तो बहुत होपफुल है, वो कहते हैं तजर्बा है, मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट पे बैठने वाले जिस कुर्बानी का जिक्र कामरान साहब कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कुर्बानी तो फिर आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि कैप्टन आप हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बात दुरुस्त है कि ये कुर्बानी तो देनी पड़ेगी अगर मुल्क में सारी पार्टियों को, सारी इकाइयों को साथ लेके चलना है, और हम उसके लिए तैयार भी हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि दूसरे दिन जो है वो शहबाज साहब जो है वो सिंध पहुंच गए और कराची का दौरा कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट में कराची का रोल पिवटल होगा। कराची की डेवलपमेंट के जो है, और क्योंकि आपको पता है जो आपकी मेजर सिटीज़ होती हैं उनका जो इकोनॉमिक इंजन होता है उससे पूरे मुल्क का इंजन जो है वो ड्राइव करता है। आपकी जो हर शहर जो है वो ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं करता। पूरे दुनिया में इसी तरह ही है, चाइना में भी इसी तरह ही है, अमेरिका में भी इसी तरह ही है। तो हम ये चाहते हैं कि जो है वो कराची को ख़ास तवज्जो दी जाए, जो कि काफ़ी जो है वो पहले नहीं दी गई, और उसको जो है वो एट बार लाया जाए एक इंटरनेशनल सिटी के तौर के ऊपर। और उसके ऊपर हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। ये बात दुरुस्त है कि हमारा जो है वो इनिशियल प्लान जो है वो यही था कि हम इस हुकूमत को ज़्यादा लंबे अरसे जो है वो नहीं जो है वो चलाएंगे, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। ये अगले चंद हफ्तों में बात क्लियर होगी कि मामलात किस नहज की तरफ जाते हैं। ये भी हो सकता है कि हम 1.5 साल पूरे कर लें, लेकिन ये इस बात का इम्कान भी है कि अगर अगले चंद महीनों में भी हम इलेक्शन में भी जा सकते हैं। और जहाँ तक जो है वो जो हम मतलब बड़े गौर से जायज़ा ले रहे हैं तमाम मामलात, इकॉनमी का भी, फॉरेन पॉलिसी का भी, जो बाकी हमारे जो और हमारे ताल्लुकात हैं जो दीगर इदारे हैं उनके साथ, और तमाम चीज़ों को सामने रख के फिर एक फ़ैसला किया जाएगा। ठीक, मैं आफ्ताब जहांगीर साहब कनेक्ट नहीं हो सके, मैं खोड़ो साहब जब तक ज़रा ये फरमा दीजिए कि जो अब बात थी कि जिस वक्त आप अपोजिशन में थे, आप कहते थे जी फौरी इलेक्शन कराएं, अवाम में जाएं, हुकूमत में आए हैं तो ये तासुर मिल रहा है कि अब आप 1.5 साल से पहले ये हुकूमत छोड़ने का इरादा नहीं है, और अब यही कहती है कि जी फौरी तौर पे इलेक्शन कराएं, तो ये खुला तजाद नहीं है? देखें, हमारे लिए ये इतनी जल्दी इतना फतवा अगर ना दिया जाए तो बेहतर है। ठीक, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि हाँ, हम चाहते हैं पाकिस्तान में अर्ली इलेक्शन हों। ठीक है, पाकिस्तान में अर्ली इलेक्शन का मुतालबा था, मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा हूं। जब हमने लॉन्ग मार्च शुरू किया तो हमने यही तीनों चीजें की थी: इस्तीफा दे दो, डिसॉल्व कर दो, या फिर हम नो कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। ठीक, हमने कहा था कि जी कुछ इंतखाबी इस्लाहात करने की जरूरत महसूस हो रही है पाकिस्तान में। ठीक, ये इंतखाबी इस्लाहात का मसला आज का नहीं है, पता नहीं कब से और कितने सालों का है। इस पे हमें सर जोड़कर जरूर बैठना पड़ेगा, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना पड़ेगा, हर एक के लिए सोचना पड़ेगा कि कल इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल न हों, उस पर सवाल न उठे, उंगलियां न उठें, सिलेक्टेड न कहलाएं हम सब कुछ। इस पे आपको जहां पोलिंग स्टेशन को सिक्योर करना है, वहां और सारे लवाजमात को ठीक करना है, वहां इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वहां इलेक्शन कमीशन वाकईतन आजाद इलेक्शन कमीशन के तौर पर काम कर सके। ठीक, और इलेक्शन कमीशन का आजाद तौर पे काम कर सके
और आवाम से किए गए चीजें अमल में लाई जा सकें, वो चीजें जिस पे फैसला हो कि जी आइंदा का पोलिंग स्टेशन इस तरह से सिक्योर होगा, पोलिंग एजेंट को मारा नहीं जाएगा, रिजल्ट उसके उसी वक्त आएंगे, हर पोलिंग एजेंट को इज्जत के साथ बिठा के उनके सामने गिनती की जाएगी, उधर लिखा जाएगा, वो उसमें डबलिंग नहीं हो कि जी मेरे हाथ में तो कुछ एक रिजल्ट आए, रिटर्निंग ऑफिसर के पास कोई और रिटर्निंग आए। ये बातें नहीं होनी चाहिए कि इलेक्शन के डब्बे लेके कोई भाग गया, कोई ये हुआ, कुछ वो हुआ। ये वो सारी चीजें हैं जिसने इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया है। ये अगर हमने कहा था तो हमें कुछ अगर मौका देंगे आप, तो मैं समझता हूँ वो नाजायज नहीं है, ये मुल्क के भले के लिए। लेकिन उस मौके की कोई टाइम दूसरी लिमिट बात होगी या नहीं होगी? क्योंकि एक पहले तो अर्ज सुने, दूसरी एक अर्ज सुने, हमने असेंबली को खारिज करने के लिए कोई लिखत में दरखास्त नहीं दी थी। ठीक। हमने कहा था ये हुकूमत संभाल नहीं पा रही, न मुल्क को, न पार्लियामेंट को, न नस्ल को, आइंदा नस्ल को, उनको संभाल नहीं पा रही, इसलिए हमने हुकूमत चेंज करने की डिमांड की थी। और ये पूरा जमहूरी तरीका है। ये कोर्ट पर भी इल्जाम नहीं आया कि जी कोर्ट ने पनामा लीक्स में नवाज शरीफ को खामखा सजा दे दी या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में यूसुफ रजा गिलानी को खामखा डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये मैंने फैसला किया, मेरे साथ और लोगों ने मिलकर फैसला किया कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। ये बदनीयती का बड़ा बेहतरीन मिसाल है जो इमरान खान ने कहा जी हम बैनुल-अक़वामी साजिश हो तो बनाओ उसका कमीशन, बैठो। आज तुमने खुद कह दिया है हम इस पार्लियामानी कमेटी में नहीं बैठेंगे, तुम नहीं बैठोगे। कल तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि जी हमने खत दिखाने की कोशिश की थी और ये अपोजिशन वाले आए नहीं थे। आज तुम खुद क्यों ऐलान कर रहे हो कि जी हम उस कमेटी में नहीं बैठेंगे जो इस बात को देखेगी? टोटली अनडेमोक्रेटिक। नहीं ये आता। मैं इससे ज्यादा कहीं, इससे ज्यादा गुनाहगार है इमरान खान कि वो नस्ल को खराब कर रहे। अपनी एक तकरीर में कहीं भी आइन का जिक्र नहीं किया। तुम कहते हो मैं पैट्रियोटिक हूं, मैं मोहब्बे वतन हूं, मैं मोहब्बे वतन हूं, तो मुल्क है ना, मुल्क है तो आइन है। अगर आइन से तुम छेड़खानी कर रहे हो तो तुम मुल्क से छेड़खानी कर रहे हो, तुम पैट्रियट नहीं हो। तुम अपने नस्ल को बेरारवी पे जा रहे हो, तुम अपने नस्ल को उल्टी और गलत बातें बताकर और अपनी टाइम गुजारना चाहते हो, अपने दिन गुजारना चाहते हो, अपनी रातें गुजारना चाहते हो, अपने जोम में सब कुछ बातें करना चाहते हो। मैं इसको उससे ज्यादा गुनाहगार समझता हूं इमरान खान को कि उसने अवाम के साथ बेवफाई की है। जाते जाते भी इमरान खान ने अपनी बुरी मईशत का बंडल किसके ऊपर डाला था? डिसॉल्व करने के बाद 3 महीने तो हुकूमत ही नहीं होती। फर्ज करो उसने डिसॉल्व कर दिया था, इलेक्शन में जा रहा था, लेकिन 3 महीने तक कोई मईशत को सहारा देने वाला था ही नहीं। कोई मोइन कुरैशी को नहीं ला रहा था, कोई मोइन कुरैशी जैसे बंदे को नहीं ला रहा था, बस फेंक दिया, बस डिसॉल्व कर दिया। अरे डिसॉल्व कर दिया, तुमने इतना मईशत का जो बेड़ा गर्क किया है, जितना तुमने कर्जे में अपने आप को डुबो दिया है, तुमने अपनी तरक्याती कामों को पता नहीं तहस नहस कर दिया, किसी चीज पर तुम्हारी तवज्जो नहीं थी। उसका क्या बना? महंगाई में वैसे ही लोग फिर रहे हैं, बेरोजगारी वैसे ही बढ़ी हुई है, सब कुछ था। अब मैं अगर कहूं कि शहबाज शरीफ अगर ये 5-6 महीने लगाकर अगर कुछ न कुछ राहें सीधी करके देता है तो क्या वो कौम के लिए अच्छा नहीं होगा? क्या वो कल के लिए हमारे लिए कुछ इत्मीनान का सबब नहीं बनेगा? हम तो इत्मीनान ढूंढ रहे हैं ना, अपने मुल्क में इत्मीनान ही खत्म हो गई, इत्मीनान खत्म हो गया, अदम इत्मीनान में हम बैठे हैं, इंतशार में हम बैठे हैं। ऊपर से ये जो रिजिग्नेशन दी है उसने तो और इंतशार पैदा कर दिया। ठीक। अब ये क्या कह रहा है? असेंबली वन साइडेड चल रही है। ये इस वन साइडेड असेंबली का तो कोई तुक ही नहीं है। जानबूझकर असेंबली पर हमला, अवामी इदारे पर हमला, अवामी इदारे पर, मैं इसको अवामी इदारा कहता हूं, उस अवामी इदारे के ये खिलाफ है। पहले भी कहता था असेंबली 2 नंबरी है, पहले भी असेंबलियों पे लानतें भेजता था। अब भी जब तुम्हारे पास इक़्तिदार नहीं है तो असेंबलियों को लात मार के तुम बाहर निकल गए हो। कामरान साहब, ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की डेमोक्रेट काम निसार खोड़ो साहब ने की, आप भी यही बात कर रहे थे, तो शुरू में आपका यही था कि शायद 2 माह 3 माह के अंदर हो जाएगा। अब लगता है कि ये प्रोसेस थोड़ा प्रोलॉन्ग होगा और अब थोड़ी इकोनॉमी को ठीक करने की बात करेंगे, टारगेट चेंज किए हैं, टाइम लाइंस जो हैं वो आपने चेंज किए। जी कामरान साहब, क्यों नहीं?
میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس میں اس نئے حالات میں ہر پارٹی کو اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلوا لینا چاہیے اور اس کی سفارشات لے کے پھر وہ پارٹیاں جب آپس میں بیٹھیں تو پھر آپس میں اس پہ جو ہے نا کوئی رائے قائم کریں. معاملات تو یقیناً اس سے زیادہ گمبھیر ہیں جتنا ہم سمجھ رہے تھے اور اس کو گمبھیر عمران خان صاحب زیادہ کر رہے ہیں اور وہ زیادہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ دستور کی وائلیشن میں کر رہے ہیں, دستور کی ٹرو اسپرٹ کے خلاف جا رہے ہیں. اسمبلی کا توڑ دینا, اسمبلی میں نہ آنا. آپ اس ایپیسوڈ سے پہلے والے اس پہ چلے جائیے. اس سے پہلے جب ان کا دھرنا تھا تو اس وقت بھی یہ 126 دن جو ہے نا وہ لا کے رات کو جو ہے نا ادھر میوزک لگا دیتے تھے پارلیمنٹ لاجز کے سامنے اور پارلیمنٹ کے سامنے, اور رات کو ٹائم پاس کرنے کے لیے آ جاتے تھے اور آ کے جو ہے نا ساتھ کچھ بچے بچیاں جو ہے انہوں نے اپنے لائن پہ لگائے ہوئے تھے. اور یہ طوفان بدتمیزی اس وقت بھی جو ہے نا پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیا گیا. اگر یعنی ہوا یہ کہ جب میں نہیں ہوں گا تو اس وقت جو ہے نا وہ پارلیمنٹ بھی نہیں چلے گی, اور جب میں ہوں گا تو پھر جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کو چلنا بھی چاہیے. ہر آدمی کو میری انگلی پکڑنی چاہیے, ہر آدمی کو مجھ سے تعاون کرنا چاہیے. ایماندار محب وطن صرف وہ ہو سکتا ہے جو میرے ساتھ چلے. اس کے علاوہ سارے بے ایمان, چور, ڈاکو, غدار ہیں. یہ ایک عجیب سا اس میں خیال کوئی سائیکو پرابلم ہے, نہ صرف ان میں بلکہ ان کے بہت سارے ساتھیوں میں بھی. تو جب تک یہ ان کا یہ ٹھیک نہیں ہوگا, اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلے گا, اس وقت تک جو ہے نا یہ ملک میں یہ خرابی پیدا کرتے رہیں گے. جو اس کے پیچھے جب اس کو لانے والے تھے, اور آج یقیناً جب اس نتیجے کو دیکھ رہے ہوں گے, جب انہوں نے اس کی تشکیل کی تھی اس پروجیکٹ کی, عمران پروجیکٹ کی, وہ یقیناً جو ہے نا آج اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے, بلکہ دونوں ہاتھوں سے سر انہوں نے پکڑا ہوگا. ٹھیک. آفتاب جہانگیر صاحب, وہ آپ سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے تھے تو اب رابطہ ہوا. کھوڑو صاحب کی بات بھی آپ نے سنی, کامران مرتضیٰ صاحب کی بھی. خود آپ کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ اگر اسمبلی میں اکثریت دوسروں کے پاس ہو تو انہیں حکومت کرنا چاہیے. اب اکثریت انہوں نے ثابت کی آپ کے اراکین اسمبلی کے علاوہ. اب اکثریت آ گئی ہے, اب ڈیموکریٹک رائٹ ہے ان کا, اب آپ اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے کہ نہیں جی ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. جی آفتاب صاحب. آفتاب صاحب کو میں خیال آواز نہیں جا رہی, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو آفتاب جہانگیر صاحب کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نثار کھوڑو صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب, ڈاکٹر عفنان صاحب, آفتاب جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آفتاب صاحب, بریک پہ جانے سے قبل میں نے سوال رکھا تھا آپ کے سامنے. آپ خود ہی کہتے تھے کہ اکثریت اگر ان کی ہو تو وہ حکومت بنائے. اب اسمبلی میں اکثریت ہے, انہوں نے حکومت بنا لیا, آپ اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے. کامران صاحب کو بھی میرا سلام, عفنان کو بھی, اور نئے سینیٹر صاحب کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام سر, خیریت سے ٹھیک ٹھاک. بہتر تو یہ ہوتا کہ ایک چوتھا سینیٹر بھی آپ لے لیتے تو آپ کا فورم ذرا مکمل ہو جاتا, بس سمجھا نا, ورنہ وہ بیساکھی. اب آپ آئے سینٹ میں. اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں نے یہ تجربہ کیا, اور یہ حافظ صاحب آپ کو شاید اس بات کا گواہ ہوں گے آپ کے کہ میں ہر دور میں جب بھی پروگراموں میں بیٹھتا تھا میں اپنی رائے بڑی کھل کر دیتا ہوں. جی سمجھے نا, مجھے کوئی وہ نہیں, کیونکہ میں ایک ضمیر کا قیدی بھی ہوں. دیکھیں, میں یہ نے محسوس کیا کہ جب تک کسی بھی ملک کے اندر, اور خاص طور پہ کیونکہ میں نے 3.5 سالوں میں یہ محسوس کیا کہ اگر آپ جو چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ یا ایسی کسی پارٹی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا ذہن نہیں ہے یا آپ کا انتخابی منشور نہیں ملتا ہے, نظریات الگ ہیں, بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس نباہ کو لے کے چل سکیں. جی ٹھیک. دیکھیں, یہ جیسے ابھی ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے یہ سارے بھائی کتنے بڑے خوش ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا ویلکم ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر. ابھی میں دوسرے پروگرام میں تھا, وہاں پر یہ بات میرے ساتھ کی جا رہی تھی کہ جی فیصل بیس کے اوپر ہم نے بڑی گرمجوشی دیکھی. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, پاکستانی ہے سب کے لیے. لیکن یہ کہ یہ گرمجوشی کب تک رہے گی؟ 3 مہینے, 6 مہینے, سال؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا یہ انتخابی الائنس ہو گیا ہے؟ حافظ صاحب, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا یہ انتخابی الائنس ہو گیا ہے کہ تمام پارٹیز پی ڈی ایم ججز سمیت ایک طرف اور ایک عمران خان, ایک پی ٹی آئی ایک طرف؟ تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ پھر یہ ہوگا یہ کہ یہ کامران صاحب کہہ رہے ہوں گے یار مجھے مت بناؤ سینیٹر,
अफनान को बना दो, अफनान कह रहा होगा नहीं मुझे नहीं बनाओ, खोड़ो साहब को बना दो, हम सब एक ही, हमारा मंशूर भी एक है, हमारा नज़रिया भी एक है, तो फिर तो सही है। लेकिन अगर उस वक्त ये कहेंगे कि नहीं जी वो ये बड़े मुश्किल है, सारा कुछ है आपके सामने है, आज जिनके इस्तकबाल की ये बात कर रहे हैं, इसी शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी हम पेट चीर कर इनके पास से लूटी हुई रकम को निकालेंगे, आज कह रहे हैं हमारी बड़ी गर्मजोशी के साथ हमारा इस्तकबाल हो रहा है। और ऐसा होगा यकीनन आप उसके जवाब में मुझे ये ज़रूर कहेंगे कि जी आप भी तो एमक्यूएम के बारे में ये राय रखते थे, तो बिल्कुल हाँ। लेकिन ये है कि हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से जिस तरह ये लोग हमें कहते थे कि जी ये लाए गए हैं, तो बिल्कुल ये भी लाए गए हैं और वो पूरी दुनिया ने देखा। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पाकिस्तानी बसता है उसकी राय ये है कि ये एक बाकायदा प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत लाए गए। हम ये समझते हैं कि हम उस साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अगर हम पार्लियामेंट के अंदर बैठते, वैसे नॉर्मली हमें बैठना चाहिए था, लेकिन अगर हम पार्लियामेंट में बैठते तो हम इंडोर्स करते उस आलमी साजिश को जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो अभी इस वजह से हमने पार्लियामेंट में हमने बैठने से बेहतर ये समझा कि हम पार्लियामेंट से बाहर रहें। अफ्ताब साहब, अब वो आज आया सादिक साहब कह रहे थे कि आपके बहुत सारे MNAs कह रहे हैं कि हमने रिजाइन नहीं देना, वो सेक्रेटेरिएट को मैसेज दे रहे हैं, और डिप्टी स्पीकर साहब कहते हैं कि ये सब नजर आएगा सामने, ऐसे होता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी कमाल की बात नहीं है कि बहुत सारे कहेंगे कि हमने नहीं देना है, बहुत सारे कहेंगे हम देंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ कि अगर मैंने किसी चीज पर स्टैंड लिया, अगर मैं नहीं देना होता इस्तीफा तो मैं खड़े होकर कहता कि जी मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, लेकिन जब मैंने दे दिया है तो मैंने दे दिया। इसी तरह बेशुमार साथी हमारे होंगे, हो सकता है बेशुमार लोग ना भी देना चाह रहे हों, कुछ पार्लियामेंट का हिस्सा भी बनना चाहते हों, कुछ पार्लियामेंट से बाहर रहना चाहते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये अपना अपना फैसला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पार्लियामेंट के आप अपनी पार्टी डिसिप्लिन के साथ चलें। अगर पार्टी ने ये फैसला कर दिया कि हमने पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहना, ठीक है, वेरी गुड। मैं GDA को सलाम पेश करता हूँ, GDA हमारे साथ डट के खड़ी रही। उसके बाद उसका पार्टी फैसला था कि हमने इस्तीफा नहीं देना, हमने बिल्कुल जोर नहीं दिया, हमने उसको अप्रिशिएट किया कि जब तक आप हमारे साथ खड़े रहे, आपने अपना किया हुआ अहद निभाया है, सही बात, आपकी अपनी पार्टी पॉलिसी है, तो बिल्कुल आप बैठे हैं, आप अपोजिशन करें, आपको बिल्कुल हक हासिल। अफनान साहब ये कहते हैं आलमी साजिश की वजह से चूंकि आप आए हैं, लिहाजा हम इस वजह से असम्बलियों से बाहर आ गए हैं कि हमारी इंडोर्समेंट होगी। जी अफनान पे अल्लाह पाक रहम करे इस मुल्क पे और इनके मौक़िफ़ पे भी। बात यह है कि इस वक्त इनके पास जो रेजिग्नेशन वाले लोग हैं वो 342 की ईवान में, 343 की ईवान में 120-125 लोग हैं। तो इसका मतलब है इनसे दुगने लोग इस मुल्क के वफादार नहीं हैं। ये शायद यही कहना चाह रहे हैं बिटवीन दी लाइन्स। और अगर कभी किसी मुल्क, मतलब यही है ना, बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत जो है ना, वो बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि उस साजिश का जिसका जिक्र किया गया था उसके अंदर आप उसके पास बैठते और उसके वहाँ बैठ के उस फोरम पर कहते कि ये साजिश नहीं है, तो यकीनन हम ये समझते। लेकिन क्योंकि आपने उसका बाइकाट किया, सर मेरी बात का इसलिए बाइकाट किया कि आपको ये मालूम नहीं है, मेरी बात सुनिएगा आफ्ताब भाई, मेरी बात सुनिएगा, जो है उनके नजदीक इस साजिश का कोई मेरी बात सुनिएगा, इसलिए वो आपके साथ। डॉक्टर अफनान साहब मेरी बात सुनिएगा। जी कामरान साहब, मैं इसमें इनकी बात का जवाब देना चाहूँगा। दूसरी बात जो ये बिटवीन दी लाइंस कहना चाह रहे हैं कि हम इनके साथ बैठते और उस वक्त तक बैठे रहते इस गैर मुल्की साजिश की प्रोब करने के लिए, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब अक़लियत में चले गए थे और अक़लियत में उनको वज़ीर आज़म बर्दाश्त करते रहते और इनके साथ हम उस ट्रक की बत्ती के पीछे चलते रहते, तो यकीनन जो है ना उस सूरत में भी हम वफादार होने का हमको तगमा मिल जाता। तो अगर ये दो बातें हैं तो ये मुमकिन नहीं था। दोनों बातों को अलग अलग कर लिया, एक बात हो गई अलग, 95 आर्टिकल वाली बात ख़त्म हो चुकी, नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया। अब आ गई साजिश वाली बात। इनको मैं दावत देता हूँ इसी प्रोग्राम में कि जो इसमें जो फोरम जो है तश्कील दिया गया है, ये जो फोरम पे, जिस फोरम पे ये मामला लाया गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अभी, तो उसमें अब बैठें और इस साजिश को जो है ना प्रूव करें। और अगर वो प्रूव कर देंगे तो शहबाज शरीफ साहब फरमा चुके हैं कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा, और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो प्रूव नहीं करते और ये सारा मामला झूठा साबित हुआ, तो फिर हम सब मिल के जो है ये मुतालबा करने में हक बजानब होंगे कि इमरान खान सियासत से रिटायर हो जाए। अफनान साहब आप अपना पॉइंट देते पे मैं खोड़ो साहब की तरफ जाऊँ। जी डॉक्टर अफनान।
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ پہلے پی ٹی آئی نے، آپ کو یاد ہوگا، نیریٹو بنایا تھا کرپشن کا کہ سب کرپٹ ہیں، ہم سب سے زیادہ ایماندار ہیں. آج وہ کرپشن کا نیریٹو کہیں ہے ہی نہیں. پھر انہوں نے الیکشن میں آنے سے پہلے کہا ہم 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر دیں گے. وہ آج لوگ ان سے بجائے اس کے اس کا جواب دیتے کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر کہاں گئے، انہوں نے بالکل ہی کیا کہتے ہیں نیریٹو ہی اپنا چینج کر دیا اور عوام کو ڈسٹریکٹ کرنے، ہم سب کو غدار بنا دیا. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس پارٹی نے نیوکلیر پروگرام سٹارٹ کیا، پاکستان پیپلز پارٹی، جس پارٹی نے نیوکلیر دھماکے کیے، پاکستان مسلم لیگ نون، جو لوگ وفادار رہے، ایون جماعت علماء اسلام کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر. آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ غدار ہیں یا ان کی لیڈرشپ غدار ہے. مطلب اگر آپ کی سیاست اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ آپ اپنے اوپوننٹ کو غدار کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں بیچنے کے لیے. ٹھیک. اور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کوئی روڈ بنائی ہے، نہ کوئی پل بنایا ہے، نہ کوئی موٹر وے بنائی ہے، نہ کوئی اسکول، نہ کالج، نہ یونیورسٹی. نہ آپ کچھ اپنی وہ بتاتے نا کہ ہم نے 4.25 سال کے اندر ہمارے یہ کارنامے تھے، ہم یہ کام ہم کر کے گئے ہیں. وہ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں. تو آپ جو ہے بجائے اس کے کیا کہتے ہیں عوام کو مطلب کیا کہتے ہیں گمراہ کرنے والی بات ہے. اور اس کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں آلریڈی لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں آلریڈی، آپ نے ویڈیوز وغیرہ سوشل میڈیا پہ جی دیکھی جی ہوں گی. بالکل. اس نیریٹو کی وجہ سے بہت زیادہ ڈویژن سوسائٹی میں آ رہا ہے. یہ نہیں کریں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کا نقصان معاشرے کو ہوگا، مگر عمران خان بھی نہیں بچے گا اگر وہ اس طرح کی نیریٹو بنائے گا جس کے اندر نفرتیں جو ہیں وہ بوئی جائیں گی. تو پھر نفرتیں کاٹنی بھی پڑتی ہیں، ٹھیک بات. خالی نفرتیں بوئی نہیں جاتی. ٹھیک بات تو ہے. یہ اس کھوڑا کو صاحب. میں کنڈیم کرتا ہوں. جی کھوڑا صاحب، اب یہ جو عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر سڑکوں پہ آج پشاور میں جلسہ کریں گے، پھر کراچی، پھر لاہور، یہ تو پھر وہ کہتے ہیں میں چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا ان کو، اور پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کروں گا. آج فواز صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک دن ہم چاہیں تو پورا پاکستان بند کر سکتے ہیں. بھائی سر آنکھوں پر یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمی جاری رکھے، انتشار پھیلانے کے لیے نہیں، پولیٹیکل جدوجہد کے لیے، ٹھیک. گالی گلوچ کے لیے نہیں، بہتر مستقبل کی تلاش میں عوام کا حوصلہ بڑھانے کے لیے. یہ پولیٹیکل پارٹی کا فرض ہے، چاہے لانگ مارچ کرے، چاہے جلسے کرے، ہر صوبے میں کرے، ہر ضلع میں کرے، ہم اس کو روک نہیں رہے. لیکن آفتاب صاحب کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں سر. کہ آفتاب بھائی، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں کو پتھر نہیں مارنے چاہیے. آپ نے ہم پر تو الزام لگا لیا کہ ہم بین الاقوامی سازش کا حصہ ہیں، جبکہ یہ ہمارا اپنا فیصلہ تھا اور پتہ نہیں کب سے ہم کہہ رہے تھے. کم از کم پیپلز پارٹی تو شروع دن سے کہتی تھی کہ اس کو ہٹانے کا طریقہ ہے تو صرف یہی ہے کہ عدم اعتماد، استعفیٰ دینے سے ہم نے انکار کیا. ہم تھوڑے تھے پھر بھی اسمبلی میں آئے. نہ صرف ہم اسمبلی میں آئے لیکن ہم نے دوسروں کو بھی راضی کیا کہ چلو اسمبلی کے اندر جا کے فائٹ کرتے ہیں. فائٹ کرنے کے لیے اندر آئے اور کہا کہ میثاق کے معیشت پر بھائی بات کرو، تو انہوں نے نہیں کی. لیکن میں جو بات کر رہا تھا کہ اب آپ نے ہم پر الزام لگا دیا. آپ بھی تو ایک مائنورٹی گروپ تھے اس اسمبلی میں، آپ کو تو کچھ لوگ ملا کے دے دیے گئے. اس کو میں کس کی سازش کا نام دوں؟ اس کو کس کی سازش کا نام دوں؟ جب آپ حکومت میں آئے، دوسروں کو ملا کے آئے تو ٹھیک ہے. ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور اپنے آپ کے اتحاد قائم کیا. ہم نے اپنا فیصلہ کر لیا. ہم نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اکٹھے رہیں گے. اور عدم اعتماد میں ہم نے 174 ممبر اکٹھے کر لیے آپ کے دوستوں کو ملا کے. میں عمران خان سے یہ بھی پوچھ سکتا ہوں کہ اب عمران خان صاحب، جب آپ کو پتا تھا کہ کوئی بین الاقوامی سازش ہو رہی تھی تو آپ نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ وہ ادھر ادھر کیوں چلے گئے؟ وہ آپ سے خفا ہو کے دوسری طرف کیوں بیٹھ گئے؟ اپنے الائز کیوں نہیں اعتماد میں لیا؟ کیو لیگ جو آج بھی آپ کے سامنے کھڑی ہے، اس وقت کیا کر رہے تھے آپ؟ ایم کیوم کل آپ کے ساتھ تھی، آج نہیں ہے. بی اے پی کل آپ کے ساتھ تھی، آج نہیں. آپ نے ان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا کہ بھائی اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے بین الاقوامی؟ ڈھکوسلا، کھوکھلی باتیں کر کے قوم کی وقت زیان نہ کریں. رہی بات کہ جی آج کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، پی ڈی ایم کیا کرے گی، میں سمجھتا ہوں پاکستان کو 2 ایسے بڑے تجربے ہیں.
एक MRD का तजुर्बा है जिसमें मुख्तलिफ ख्याल पार्टियां थी, 88 की इलेक्शन हुई, जमहूरियत चल पड़ी ना, ज़िया-उल-हक के बाद जमहूरियत चल पड़ी। हो सकता है MRD में कुछ लोग नाखुश भी थे कि इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसा एक और कहा था ARD में मुस्लिम लीग भी थी, पीपुल्स पार्टी भी थी। 2008 का इलेक्शन हुआ, हमने उनको मनवाया कि जी 2008 के इलेक्शन में हिस्सा लो। हमने ये मौका गनीमत नहीं देखा कि जी नवाज शरीफ साहब वैसे ही मुल्क से बाहर हैं, उनको क्यों ले आए, हम सभी हो जाएं, हम ही हो जाएं, हम ही हो जाएं। हमने ये नहीं किया। हमने नवाज शरीफ साहब को मुतासिर किया, उसको मनवाया कि तुम्हें इलेक्शन से बायकॉट नहीं करना चाहिए। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी होती तब है जब ये सारी पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा लें। ये इमरान खान था उस वक्त भी जो 2008 की इलेक्शन से बायकॉट करे भाग गया था। ठीक, इस जमहूरियत में यकीन न रखते हुए जब मुशर्रफ था तो उस वक्त इमरान खान इलेक्शन में खड़ा हो रहा था। जब मुशर्रफ के जाने का वक्त हुआ तो इमरान खान ने बायकॉट किया। अब क्या कहता है, ये अनडेमोक्रेटिक था, है और रहेगा। इसलिए आफ्ताब साहब की खिदमत में मैं खुद से फिर से मौदवाना अर्ज कर रहा हूं कि सर फिक्र न करें, ये पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान मिला है, ये कहीं नहीं जाएगा। मुल्क कहीं नहीं जाएगा। हम हैं, देखे हुए हैं बुरे दिन, देखे हुए हैं भले दिन, देखी हुई है मार्शलाएं, देखा हुआ है ज़िया-उल-हक, देखा हुआ है मुशर्रफ, देखा हुआ है सब कुछ। हम इन सारे, हमें चोट खाई हुई है, 58 2B में हमने चोटें खाई हुई हैं। हमने सब जानबूझकर इकट्ठे हुए अपनी ताकत को जमा किया है। ठीक है, यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। तो नई हुकूमत को चैलेंजेस क्या हैं, उनका रोड मैप क्या है जो हुकूमत में शामिल जमाते हैं, और अपोजिशन का रोड मैप क्या है। आफ्ताब जहांगीर साहब से उनका रोड मैप भी पूछेंगे प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में। वेलकम बैक नाज़रीन। निसार खोड़ो साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, डॉक्टर अफनान साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब मेरे मेहमान हैं। चलें सबसे पहले डॉक्टर अफनान साहब, नई हुकूमत है, आप ड्राइविंग सीट पे हैं, चैलेंजेस क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या हैं, रोड मैप क्या है नई हुकूमत के लिए आपका? हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त वो मईशत का है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। और जो है उसके अंदर, और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज हमारा फॉरेन पॉलिसी का है, और ये एक हद तक इंटरलिंक्ड भी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर चाइना और हमारा मेजर अलाई सऊदी अरेबिया और जो दीगर मुल्क हैं, यूरोपियन यूनियन है, उनके साथ हमें अपने रिलेशनशिप को जो है वो रीसेट करना है। और उसकी वजह ये है कि ये पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं, और प्राइमरीली कुछ ऐसे काम किए गए, मतलब वो घड़ी वाला मामला है वो आपको पता है, फिर जो है वो CPEC को बंद कर दिया गया, वो सारे पाकिस्तान को पता है, फिर जो अभी रिसेंट जो एपिसोड हुई हैं ये सारी की सारी चल रही है, इसकी वजह से इंटरनेशनली हमें बहुत नुकसान पहुंचा है। तो हमारा जो है वो प्लान ये है कि हम दोबारा से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को रीस्टार्ट करें, हम जो है वो सऊदी अरेबिया से बात करें, उनको दोबारा से इंगेज करें, हम जो यूरोपियन यूनियन को इंगेज करें, अमेरिका के साथ जो हमारा मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है उनके साथ दोबारा से बात करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ मामलात को लेके जाएं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं मल्टी प्रॉन्ग, जिनके ऊपर हम ऑलरेडी काम हमने शुरू कर दिया है, और इंशाल्लाह इसके असरात जो है वो आवाम को आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो जाएंगे। किसी हद तक जो है वो आप देख सकते हैं कि डॉलर जो है वो काफ़ी वीकन हुआ है, पिछले 9 रुपये कम हुआ है रुपए के मुकाबले में। फिर जो है वो स्टॉक मार्केट जो है वो रिकॉर्ड पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतनी ऊपर नहीं गई, वो गई है। तो ये कुछ अगले हफ्ते में हम लोग लगे हुए हैं काम करने, बेहतरी जो है वो आवाम के सामने और आनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह जल्द। जी आफ्ताब जहांगीर साहब, ये तो इनका रोड मैप है, आपका रोड मैप क्या है? आपने चैन से नहीं बैठने देना इनको जब तक ये हुकूमत नहीं गिर जाती, घरों पे वापस नहीं जाना, रोडों पे रहना है? पहले बात तो ये हाफिज साहब, मैं समझता हूँ कि जैसे ये बहुत सारी क्रेडिट लेते हैं अपने अकाउंट में, ये क्रेडिट भी ले लें कि ये अब इनके पास, क्योंकि फुल असेंबली भी इनकी, पार्लियामेंट भी इनके, बिल भी इनके, सब कुछ, एक बिल ये भी पास करा लें कि यार ये सिंगल मेजॉरिटी हुकूमत होनी चाहिए। अभी मेरे दोस्त खोड़ो साहब ने ये कहा कि हम जो थे बहुत वो थे। अब खोड़ो साहब से मैं पूछता हूँ कि इनकी सीटें कितनी थी कौमी असेंबली के अंदर, अब जिसकी हुकूमत बनी है उसकी सीटें कितनी है और हमारी कितनी थी? उसके बावजूद, क्योंकि कानून और आइन ये कहता है कि हमें इतनी तादाद चाहिए होती है, जिसकी वजह से हमें छोटी जमातों के पास जाना पड़ता है और उनकी हिमायत को लेना पड़ता है, तब जाकर हुकूमत बनती है। सिवाय एक दफा के जब नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत, वरना हमेशा अलायंस। और अलायंस जो है ये आपने देखा जब भी हुआ ये कभी पायदार नहीं हुआ, कोई हुकूमत भी 3-3.5 साल से ज्यादा चल नहीं सकी, सवाए एक हुकूमत के जो 4 साल के करीब कुछ चली है, वरना कोई हुकूमत नहीं चल सकी। तो मैं ये समझता हूँ कि हम 155 के साथ थे, और फिर हमने जिन जमातों को मिलाया उनका इंटरेस्ट
कोई ओवरसीज इंटरेस्ट नहीं था उनका, वो उनके अपने वो थे जो उन्होंने बयान किए, उन्होंने इस तरफ तो तवज्जो ही नहीं दी। ना ये बात यही कहने की हमें तहकीकात करनी चाहिए कि कोई, वो कहते हैं बताया ही नहीं आफ्ताब साहब, वो कहते हैं बादराबाद है, जब नहीं बताया एक रात पहले तक है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो आवाम की ताकत से आवाम के पास जाएंगे, जब इलेक्शन कॉल होंगे भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे, आवाम की जो फैसला होगा उसको मनोवन कबूल करेंगे और फिर आके अपना किरदार अदा करेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब, चैलेंजेस आपकी नज़र में जो अफनान साहब ने बताए हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो आपके जहन में है कि प्रायोरिटी क्या है? दो चीज़ें जो है ना वो बहुत अहम है। अगर आप पब्लिक को इमीडिएट रिलीफ ना दे पाए 10-15%, तो ये आपकी ये गवर्नमेंट जो है ना ये आपके लिए बोझ बन जाएगी। ये पहली आपकी जो है ना तरजीह होनी चाहिए। दूसरी जो है ना स्टेबिलिटी और ये जो पॉलिटिकल टर्माइल जो है ना वो क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, मतलब कि मुल्क को अनस्टेबल कर दिया जाए और पॉलिटिकल टर्माइल जो क्रिएट कर दिया जाए, इससे निपटना पड़ेगा। और इससे निपटने के लिए जो मैं जो इनकी पीटीआई की जो मैंने इनका माइंड सेट स्टडी किया है, तो मेरा ख्याल है कि ये शायद प्यार से नहीं होगा। इस पे वो मामलात जो इनके अगेंस्ट हैं जेन्युइन, वो आपको लाने पड़ेंगे, और वो एहतसाब का नैरेटिव जो इन्होंने शुरू किया था, आप उसको जल्द अज जल्द ना डे टू डे पीटीआई की करप्शन बेनकाब करनी होगी, उनको फिक्स करना होगा। कामरान साहब, ना सिर्फ बेनकाब करनी होगी बल्कि इनको उन मामलात को जो है ना विद इन डेज जो है ना वो आपने तरजीही बुनियादों पे इसको डिस्पोज ऑफ करवाना होगा अदालतों से, ताकि जो है ना लोगों को पता चले कि असल में जो है ना उनके साथ क्या हो रहा था और क्या बताया जा रहा था। अगर आप ये दो चीज़ें नहीं करेंगे, ये जो इनकी आड़ियाँ जड़ियाँ शुरू हो गई हैं, परसों पेशावर, उसके बाद जो ना फलां जगह, फिर फलां जगह, ये आपके लिए मसाइल क्रिएट करेंगे। खोड़ा साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर आपके, प्रायोरिटीज एंड व्हाट शुड बी द एजेंडा और रोड मैप प्रेजेंट गवर्नमेंट का। देखें, अवाम हमेशा स्टेट से रिलीफ चाहते हैं कि मिले। ठीक बात। जो कुछ रिलीफ होता था इस हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत ने वो छीन लिया था। जाहिर है उम्मीद लगाए रखे होंगे कि अगली हुकूमत हमारे लिए कुछ करे। इसलिए मैं कहता हूं कि 1 साल पहले जो पीपुल्स पार्टी कहती थी कि अज़म एतमाद ले आओ, तो कुछ पाकिस्तान को बेहतरी के रास्ते में डालने के लिए 2-2.5 साल मिल जाए। ठीक, वो मुतालबा उस वक्त सही था बिल्कुल। मैं समझता हूं 3.5 साल के बाद ये अमली जो काम किया है हमने, उसमें हमने थोड़ी सी देर कर दी है। जिन दोस्तों ने हमसे उस वक्त इत्तेफाक नहीं किया था, मैं कभी कभी उनसे खफा भी हो जाता हूं, उनको मयार भी देता हूं, उनको कहता हूं कि जी हमने टाइम ज़ाया किया, इस हुकूमत को और ज्यादा जुल्म करने का मौका मिला। मईशत है, ठीक, बुरी हाल है, लोगों की गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, ठीक, साल भर में पूरा नहीं हो सकेगा, मुझे समझ में आता है, लेकिन कुछ न कुछ, जैसे अभी देखें ना, सिंध हुकूमत ने कहा कि जी 18,000 रुपए से बढ़ा के हमें 25,000 उजरत करनी चाहिए, बेसिक पे करनी चाहिए 25,000। ये इमरान खान की हुकूमत थी, जो हुकूमत कोर्ट में गई और हमें इस काम करने से रोका गया। आज अगर शहबाज शरीफ कहता है कि जी 25,000 बेसिक पे है, तो उसमें थोड़ा बहुत तो कुछ न कुछ दिल में ठंडक पड़ेगी ना कि यार कुछ सोचा गया हमारे लिए। ये तनख्वाहदार तबका कितना है? पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका एक सूबा सिंध में सबसे बड़ा तबका है जी एजुकेशन, उसके टीचर्स, उसके नॉन टीचिंग स्टाफ, सेहत है, फला है, ये है, वो है, पता नहीं कितने एम्प्लॉइज हैं जिसका तनख्वाह में इजाफा होना अगर हुआ है, तो ये इतने बड़े तबके को कुछ न कुछ तो ढारिस मिली। ठीक, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। वही इमीडिएट रिलीफ जो बात कामरान साहब कह रहे हैं कि जी इमीडिएट रिलीफ जो है ना वो देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, इमीडिएट रिलीफ तो जाहिर है कितना आपके पास है उसके ऊपर ही करेंगे, लेकिन सोच वही होनी चाहिए कि जी उनको रिलीफ दिया जाए। ठीक, निसार खोड़ो साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, डॉक्टर अफनान साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।